Okay. Can you people see? Yes, miss. Okay. Just look at the angle CAS. Can you look at the angle CAS in your diagram? What is the angle CAS? What is the value of CAS? Theta. Angle CAS equals to angle BOA, that is equals to theta. Is this everyone clear? CAS, BOA, both are theta. Everyone is clear with this? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. Now, in right angle triangle, in right angle triangle, ASC. Just look at the triangle ASC. ASC. Can you tell me cos theta क्या होगा? What will be the value of cos theta in triangle ASC? What will be cos theta? Cos theta का फॉर्मूला क्या होता है? आंसर. What is cos theta? AS upon AC. अच्छा पहले ये बताओ कि इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? मैम In सी एस triangle परपेंडिकुलर ASC. है, सी एस परपेंडिकुलर है और सी ए हाइपोटेन्यूस है। CS परपेंडिकुलर है और CA हाइपोटेन्यूस है और AS हाँ। क्या है? बेस। बेस है. That is true. AS हमारा बेस है. फिर से सोचो. AS हमारा बेस है. C ये परपेंडिकुलर है और आप बोल रहे हो कि ये हाइपोटेन्यूस है. ठीक है, दैट इज ओके. अब बताओ cos थीटा क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा? cos थीटा क्या होता है? AS upon है ना AC. ट्रिग्नोमेट्री? Base upon Yes. AS upon AC. It is AS upon AC. That is base upon hypotenuse. Cos theta is AS upon AC. That is equals to base upon hypotenuse. Okay. Can I write AS is equals to AC cos theta? Let's say this is equation number 1. ये AC को इधर भेज दिया. So AS is equals to AC cos theta. पहले देख के लो फिर लिखना स्टार्ट करना. यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Now let's next. Sin theta. What will be sin theta now in this triangle? What will be sin theta? CS upon AC. That is SC upon या CS बोलो या SC बोलो एक ही बात है. SC upon AC. So SC can be written as AC sin theta. इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल. Now using Pythagoras theorem, in triangle OSC. OSC triangle देखो आपके डायग्राम में. Just look at the triangle OSC. बड़ा वाला ट्राइंगल है OSC.
मैंने आपको कहा था कि हम लोग को हर पॉइंट पे डायग्राम का जरूरत है, इसलिए ड्रॉ कर लो। कैन यू लुक एट द डायग्राम? OSC Yes, miss. Yes, miss. पाइथागोरस लगाओ और बताओ क्या आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और बताओ क्या लिखूं मैं। OS बोलो square बच्चों। plus CS square is equals to OC square. OC the whole square is equals to OS the whole square. Is this correct? Yes, miss. Acha. Now can I write OS as OA plus AS the whole square? लिख सकती हूँ क्या? Yes, Can I miss. write OS as OA plus AS the whole square? सब लोग अपने डायग्राम में देखो और आंसर करो। Can I write it like this? Yes, miss. Yes, miss. Okay. Now A plus B का फॉर्मूला लगा दो जरा इस पे। So this becomes OA का स्क्वायर plus 2 times OA AS plus AS का स्क्वायर प्लस SC का स्क्वायर। ये सबको समझा क्या हुआ? Yes, miss. और if I look from a triangle, let's put it as equation number 3. Now from triangle ASC, वापस से जरा ट्राइंगल ASC को देखो और उस पे पाइथागोरस लगाओगे। ऑन ट्राइंगल ASC पाइथागोरस अप्लाई करो। क्या आएगा बोलो? AC square is equals to AS square plus SC square. AS square AC square is equals to AS square plus SC square. इक्वेशन नंबर 3 में AS स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर दिख रहा है क्या किसी को? Yes, miss. Yes, teacher. यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसको इक्वेशन नंबर 4 डालो और लिख दो पुट इक्वेशन 4 in 3। सो आपका थर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस 2 times OA AS प्लस AC का स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, miss. अब अगर तुम ध्यान से देखो if you look at the things, what you can see is OC OA OA AS AC। तुम सारी चीजों को ध्यान से देखो। So what you can say about the things? आप इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल सकते हो। You can substitute some values. क्या कर सकते हो? वैल्यूज डालो और बताओ क्या आएगा। अच्छा यहाँ पे फ्रॉम
equation 1, can you just substitute AS as from equation 1, substitute equation as, substitute AS equals to AC cos theta. So OC का square equals to OA का square plus 2 times of OA AS. AS की जगह पे AC cos theta डाल रही हूं मैं. अब इस सब की वैल्यूज डालो. OC क्या है डायग्राम के हिसाब से? What is OC according to diagram? R bar. Yes. So of course उसका स्क्वायर ले रहे तो बार लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्क्वायर ले, अगर आपको याद हो स्क्वायर ले रहे थे तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम. We were talking about a magnitude जब हम स्क्वायर लेते हैं तो. So don't write बार. So R का स्क्वायर, OA क्या है? P. P square. P का स्क्वायर 2 times of P Q cos theta और AC है हमारा Q स्क्वायर. सो आपका R बार का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta. मतलब अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स दिया है और बोला है रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल, रिजल्टेंट का वैल्यू निकालो, तो आपको P की जगह पे P का स्क्वायर करके डालना है, Q की जगह पे Q का स्क्वायर करके डालना है, और PQ की जगह पे P का वैल्यू डालना है, Q का वैल्यू डालना है, और cos थीटा की जगह पे वो दोनों जो वेक्टर्स है वो कितने एंगल पे है वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालनी, उनका रूट निकालना है ऐड करके, यू विल गेट द आंसर. कुछ समझे? Yes, miss. So this equation gives the magnitude. Equation gives the magnitude. अभी डायरेक्शन बाकी है, पर पहले आप मैग्नीट्यूड लिखो. हर स्टेप लिखते वक्त डायग्राम रिलेट करना, कुछ नहीं समझे कहाँ से आया तो पूछना. स्टार्ट राइटिंग. दिख रहा है हेलो सबको? मिस. बोलो. मिस थोड़ा पीछे का रिवाइज कराओगे क्या, ये वाला? कौन सा? ये जो आपने सिखाया ना, ये ऊपर. जो नहीं थे? नहीं मैम, नेटवर्क इशू हो रहा था इसके लिए नहीं. ओके. सो अब अपना डायग्राम ओपन करके बैठो. यस मैं जो समझा रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ वो रिलेट करते जाओ. एंगल CAS इक्वल्स टू एंगल BOA इज इक्वल्स टू थीटा. दिखा इन योर डायग्राम? यस मिस. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ASC, अगर ASC देखो अपना राइट एंगल ट्राइंगल, सो cos थीटा इज AS अपॉन AC. cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. सो cos थीटा इज AS अपॉन AC. ये क्लियर हुआ? यस मिस. So I can write AS as AC sin theta. This is clear? Put this as equation number 1. Then sin theta is equals to SC upon AC. Can you look at this? Sin theta is equals Yes, to miss. SC upon AC. So SC can be written as AC sin theta. Now using Pythagoras theorem in triangle OSC. Triangle OSC देखो आपके डायग्राम का. हाँ मिस. So OC का square is equals to OS का square plus SC का square. Now OS can be written as OA plus AS. Just look at the diagram. OS can be written as OA plus AS. So it will become OA plus AS the whole square. दिखा डायग्राम में? यस मिस. प्लस SC स्क्वायर. अभी OA plus AS पे मैंने A plus B the whole square का फॉर्मूला लगा दिया. So OA square plus 2OA AS
plus as square plus sc square. Now just look at a triangle ASC again and apply Pythagoras. So AC का square is equals to AS का square plus SC का square. And we can see in equation number 3 that there is AS का square plus SC का square. इन सबको हटा के मैंने AC का square substitute कर दिया. Is this clear? Yes, miss. Next what? Your equation becomes OC का square is equals to OA का square plus 2OA AS plus AC का square. क्योंकि हमने वो पीछे पूरा AC से सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अभी हमने ऊपर देखा था कि AS जो होता है वो AC cos थीटा होता है. तो हम उसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. AS की जगह पे AC cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. फिर हमने सबकी वैल्यूज डाल दी जो हमने अपने वेक्टर डायग्राम से देखा था कि OCR है, OAP है और ACQ है. Substitute करके you got the value for a magnitude, you got the formula for a magnitude of a resultant R bar. Yes, miss. Is this everyone clear? Yes, sir. Yes, Oh, yes, miss. teacher. Sorry. अब लिख के ले लो फटाफट और लिखते वक्त हर स्टेप ध्यान से देखना. कोई स्टेप नहीं समझ रहा है क्या लिखा है तो पूछना. हर स्टेप लिखते वक्त डायग्राम को कंपेयर करो और लिखो. और कुछ नहीं समझता है तो पूछो. क्या हुआ? पेज ऊपर लो ना. जितना पार्ट दिख रहा है उतना हो गया. Yes, teacher. अब ठीक है. जरा ब्लर दिख रहा है. Yes, miss. किसी को दिख ब्लर रहा है? दिख मैंने रहा तो कुछ भी नहीं किया. ब्लर कैसे दिख सकता है? सबको ब्लर दिख रहा है. Yes, miss. अरे बट आई हैव नॉट डन एनीथिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट वेट करो. मैंने मूवमेंट किया है शायद इस वजह से हो रहा होगा. अब ठीक है. Yes, miss. मैम थोड़ा राइट ब्लर में लो ना, मतलब वो साइड का तो नहीं दिख रहा. ब्लर मतलब हल्का भी ब्लर होता है तो तुम लोग ब्लर बोलते हो क्या? या बिल्कुल नहीं दिखता है? ब्लर दिखता है तो मैम बिल्कुल नहीं दिखता कभी. ठीक है. लिखो. मैम वो पाइथागोरस थ्योरम में थर्ड स्टेप है ना, ओ ए स्क्वायर प्लस, उसके आगे क्या है, 2OA है क्या? कौन सा? 2 स्क्वायर है थर्ड स्टेप. ये बोल रहे हो? ये स्टेप बोल रहे हो? हाँ वो. सो ये लगाओ ना इस पे. a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखा लगाओ इस पे. ओ ए द होल हाँ मैम स्क्वायर वो प्लस 2 OA है टाइम्स ना. ओ ए एस. हाँ और क्या दिख रहा है ये? हाँ ओके मैम. 2 टाइम्स ओ ए एस प्लस एस द होल स्क्वायर और एस सी का वैसे लिखा है एस सी द होल स्क्वायर. मैम और उसको इक्वेशन 3 दिया है ना. हाँ नहीं दिख रहा है क्या? आप लोगों ने बहुत मैग्नीफाई करवा दिया. इससे पेज थोड़ा ही कवर हो पा रहा है. एक मिनट रुको जरा. देख चुका.
हो गया ये पार्ट सबका? Yes, Yes, teacher. miss. Yes, miss. कोई बाकी है जिसका नहीं हुआ लिख के? मैं बुक चेक करूंगी, हाँ, कीप इट इन माइंड। मैंने टाइम दिया है तो मैं बुक चेक करने वाली हूँ, और अगर मुझे बुक्स में नहीं मिला ना ये सब, तब फिर मैं बताऊंगी आप लोगों को। काफी लोग आराम से टाइम पास भी करते हैं बैठ के, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट में स्क्रीनशॉट करवाना होता तो लिखवाना क्यों है? कोई अगर ये रिजल्ट बताना स्क्रीनशॉट ले लिया था, फिर देखना मैं बताती हूँ फिर क्या करना है। मैम इसके पहले वाला दिखाना एक बार। किसी ने अगर ये राम कहानी सुनाई ना, स्क्रीनशॉट ले लिया था, पिट जाओगे, इतना समझ जाना। टाइम दिया है, मुझे लिख के चाहिए। आप लोग से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करने आती है हमको। मैं भी भेज देती पीडीएफ, पढ़ा क्यों रही हूँ फिर? दिख रहा है सबको? Yes, miss. Yes, miss. ले लो लिख के फटाफट। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। Once you are done, let me know. मैम वो ओसी स्क्वायर है ना, कौन सा? वो फ्रॉम इक्वेशन 1 के नीचे। ये हाँ, उसमें वो 2OA AC के बाद क्या लिखे हैं? cos थीटा, ओके एएस की जगह पे एसी cos थीटा डाला है ना। ओके। आप लोग खुद को भी पुश करो जरा, पुश योरसेल्फ आल्सो, कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो रिलेटेड फ्रॉम अपवर्ड, जस्ट ऊपर ही चीजें लिखी है। पुश करोगे तो दिमाग सोचेगा, पुश नहीं करोगे तो आपका दिमाग सोचना नहीं सीखेगा। और टीचर सिर्फ एक लिमिट तक सोचवा सकता है, आगे का सोचने का काम आपका है। और जब तक सोचोगे नहीं, फिजिक्स नहीं समझेगा। ये जब तक चीजें इजी है टीचर आपको सोचवा सकता है, पर जब कोई चीज टफ होना स्टार्ट होगी तब आपको आपके ब्रेन को पुश करना पड़ेगा, वरना ब्रेन कंफर्टेबल जोन में ही बैठा रहेगा हमेशा कि ठीक है मैम तो लेगी ना, हम लोग देख लेंगे। ऐसे करोगे तो फिजिक्स एकदम आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। आई एम टेलिंग यू दिस, you have to push yourself towards the things. ये सब में पूरा मैथमेटिकल स्टेप्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। जो आपका 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है वही यूज किया है। Once you're done, let me know. Done, miss. सबका हो गया? Yes, miss. ठीक है। Now we are going to find the direction of a resultant vector. अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। मैंने कहा था, मैंने आपको बताया था कि what does actually mean the resultant of a direction, the resultant of a the direction of a resultant vector। कि अगर आपका ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, they are representing the
sides of the parallelogram, and this is your resultant vector, which was your r bar. So वो इस मैम बोलो मैम आप जरा एक बार सिर्फ प्रूफ दिखाएंगे क्या ऊपर वाला? क्या हो गया? मिस मैंने थोड़ा शायद गलती किया है ओबी में और ओए में, पता नहीं। ओ बी तो है ही नहीं इक्वेशन में। मिस मैं 1 मिनट ऊपर लो ना। किया है मैंने, ऊपर देख लो। ओके मिस, ओके। ठीक है। सो अगर आपको याद हो रिजल्टेंट वेक्टर का कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर और हमें इसका डायरेक्शन निकालना है, तो एक्चुअली हम क्या निकालने वाले हैं? ये हमारा क्यू बार था और ये हमारा पी बार था। सो वो क्यू बार से कितनी कौन से एंगल से रिप्रेजेंट किया है? बीटा। और पी बार से वो कितने एंगल पे है? दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। सो ये एंगल ही अगर हमें पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा आर का डायरेक्शन कहाँ पे चल रहा है, वेयर माई आर इज मूविंग। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, in triangle OSC, जरा देखो triangle OSC, look into your diagram. Triangle OSC, triangle OSC. Can you see the triangle, everyone? Yes, miss. यस सिर्फ OSC देख रहे हैं, पूरा थीटा नहीं आएगा। अब अगर आप ट्राइंगल OSC देखते हो तो नाउ इट इज एंगल अल्फा। सो tan अल्फा क्या आएगा? व्हाट इज tan अल्फा इन ट्राइंगल OSC? टेल मी, इन ट्राइंगल OSC tan अल्फा क्या होगा? CS upon OS. यस, CS और SC upon OS. Is this everyone clear? Now can I write OS as OA plus AS? Yes. यस Now what is SC? हमने पीछे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कुछ लिखा है ना? क्या रिलेशंस लिखा है जरा देखो। From first equation, from first and second equation. AC into sin theta. SC is AC sin theta. OA वैसे ही आएगा। And what is AS? AC sin theta. AS क्या है? What is AS? AS क्या है? AC AC cos cos. theta. Yes, it is AC cos theta. So AC आपके डायग्राम से देखो क्या है? What is AC? What is AC in your diagram? AC क्या है Q bar. हमारा? बोलो बच्चों। Q bar. क्यू That is Q sin theta. और OA क्या है? P. पी ठीक है, that is therefore alpha is equals to tan inverse of Q sin theta upon P plus Q cos theta। और अगर इसी तरीके से अगर आप यही सारे मेथड यूज करके बीटा निकालो तो आपका बीटा आएगा
बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ p sin थीटा on q प्लस p। सो ये आपका अल्फा और आपका बीटा का जनरल फॉर्मूला है जो आपको रिजल्टेंट के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। या आप जब सम सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कि अप्लाई कैसे करना है। चलो लिख के ले लो, कुछ स्टेप में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। राइट इट डाउन। मैम वो डायग्राम नहीं बनानी क्या? नहीं नहीं, डायग्राम हमने बनाया, वही डायग्राम यूज करना। मैम सेम डिक्टो डायग्राम, क्या हुआ? सेम डायग्राम यूज करना है। सेम डायग्राम यूज करना है। मैम क्या हुआ? मैम आप ये पार्ट आप स्टार्टिंग से रिपीट करो क्या मैम प्लीज, मेरा बैटरी इशू था। मैं क्या हुआ था? मैम मेरा बैटरी इशू की वजह से मोबाइल बंद पड़ गया था। आप वापस से समझाओ ना ये वाला पार्ट। श्योर श्योर श्योर। देखो इन ट्राइंगल ओएससी, देखो जरा अपने डायग्राम में ट्राइंगल ओएससी देखो। यस मिस। देखा ट्राइंगल ओएससी? ट्राइंगल ओएससी में लेट्स गो अहेड विथ tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा हमारा? SC अपॉन OS। देख पा रहे हो? tan अल्फा इज SC अपॉन OS। दिखा? You have to relate your diagram. यस मिस। So tan alpha is SC upon OS. OS को मैं लिख सकती हूँ OA plus AS. I can write OS as OA plus AS. Is this clear? यस मैम। Now from 1 and 2 equation, जो हमने first and second equation लिखा है ऊपर, SC can be written as AC sin theta and AS can be written as AC cos theta. Can you relate? यस मैम। So now we from the diagram AC is Q. So this is Q sin theta. OA is P and AC is Q cos theta. So tan alpha equals to Q sin theta upon P plus Q cos theta. ये क्लियर हुआ? AC की जगह पे Q डाल दिया और OA की जगह पे P डाल दिया। यस मैम समझा। ठीक है? So alpha is equals to tan inverse of, tan को इधर ले आए, tan inverse of Q sin theta upon P plus Q cos theta. Similarly आप ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर करके बीटा को भी इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ P sin थीटा अपॉन Q प्लस P cos थीटा। आपको पता है अल्फा कौन सा एंगल है और बीटा कौन सा एंगल है? अल्फा एक्स एक्सिस से मतलब अल्फा P से P के रिस्पेक्ट वाला एंगल है और बीटा Q के रिस्पेक्ट वाला एंगल है। इज दिस क्लियर? Is this clear everyone? यस मैम। Yes, miss. यस मिस। अल्फा P से लिया हुआ एंगल है और बीटा Q के रिस्पेक्ट में लिया हुआ एंगल है टू द R। चलो लिख के ले लो अभी ये, किसी स्टेप पे इश्यू हो तो पूछ लेना, पर थोड़ा सा खुद को भी पुश कर। फिर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
आर यू पीपल डन? Yes, miss. अरे बोलो तो सही, मुझे कैसे पता चलेगा? डन? Yes, miss. चलो कुछ सम्स करते हैं. एक मिनट में. Yes, ma'am, done. Okay. So let's do question number 1. आप लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है इसमें, फिर मैं समझाऊंगी क्या करना है. Find the vector that should be added to the sum of, लिख के ले लो क्वेश्चन. Find the vector that should be added to the sum of 2i cap minus 5j cap plus 3k cap and 4i cap plus 7j cap minus 4k cap to give a unit vector along x-axis. आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिस वेक्टर को अगर मैं इन दोनों के सम से ऐड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ. यू हैव टू कैलकुलेट सच वेक्टर. आपको ऐसा वेक्टर निकालना है जो अगर मैं इन दोनों के सम को ऐड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाए एक्स एक्सिस के अलोंग. क्या कर सकते हैं? पहले ये बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? आई, जे और के. I cap. I can. आई कैप. मतलब मुझे आई कैप चाहिए. इन शॉर्ट, तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा कि आई कैन गेट आई कैप? सिंपली आई कैप. मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए एक्स एक्सिस के अक्रॉस, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्या इन दोनों में ऐड करूं कि आई कैन गेट अ आई कैप. दैट इज आई कैन गेट अ यूनिट वेक्टर अक्रॉस द एक्स एक्सिस. सो लेट्स से, चलो लेट्स से दैट वेक्टर एज पी बार. हमको नहीं पता तो हम लोग बोलते हैं कि जो वेक्टर हम जो वेक्टर निकालने वाले हैं, लेट्स से दैट वेक्टर एज पी बार. ठीक है. अगर इस पी बार को अब मैं इन दोनों में ऐड कर दूं तो मुझे आई कैप मिल जाएगा, ऐसा मैं बोल रही हूँ. सो लेट्स डू दैट. पी बार प्लस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप प्लस 4i कैप माइनस प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप. मतलब अगर मैं पी बार को इन दोनों में ऐड कर देती हूँ तो मुझे आई कैप मिल जाएगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया है. Is this everyone clear what I did? Yes, miss. Now add these vectors. Addition तो सिखाया है मैंने कैसे करते हैं. ये p बार तो कुछ नहीं कर सकते. Let's add this. 2i cap plus 4i cap is 6i cap minus 5j cap plus 7j cap plus 2j cap plus 3k cap minus 4k cap minus k cap is equals to i cap. यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या किया? Yes, Yes, miss. 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 Yes, miss. Yes, teacher.
चलो इसको यहाँ भेज देते हैं। पी बार इज इक्वल्स टू, ये सब उठाकर यहाँ भेज दो। सो आई कैप, ये 6i कैप पॉजिटिव है तो यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, -6i कैप। ये +2j कैप है तो यहाँ जाके -2j कैप। ये -k कैप है तो यहाँ जाके +k कैप। सो p बार इज इक्वल्स टू i कैप -6i कैप इज -5i कैप -2j कैप +k कैप। मतलब अगर मैं इसको इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आपका आंसर आई कैप आएगा। यू गॉट द वेक्टर। समझा सबको क्या किया? कोई ऐसा है जिसको ये सम क्लियर नहीं है? Anybody हो? कोई ऐसा है जिसको ये सम क्लियर नहीं? फिर से एक बार समझाओ ना। मैम थर्ड स्टेप में -2j कैप आना चाहिए। थर्ड स्टेप में तो आपने लिखा है ना 6i कैप +2j कैप, तो वहाँ पे प्लस के बाद माइनस आना चाहिए। प्लस क्यू? -5j कैप और +7j कैप, तो प्लस -5j कैप और +7j कैप है तो बड़ा साइन किसके पास है? बड़ा नंबर कौन सा है? 7j कैप तो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव हाँ प्लस का आएगा। फिर मैम वो आई को क्यों बाहर लिया वो नहीं समझा। आई को बाहर नहीं लिया है मैंने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मुझे एक ऐसा वेक्टर बताओ जो मैं इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाए एक्स एक्सिस के अक्रॉस। अब यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या होता है? आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अक्रॉस आई कैप होता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप मुझे एक ऐसा वेक्टर निकाल कर दो जिसको अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दूं तो वो मुझे आई कैप दे दे। तो मैंने कहा कि उस वेक्टर को हम पी बार ले लेते हैं। अगर मैं पी बार को इन दोनों वेक्टर्स के साथ ऐड कर दूं तो वो मुझे आई कैप दे देगा। आई कैप इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप होता है, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम ओके ओके। क्वेश्चन ये है कि दे आर आस्किंग फॉर अ वेक्टर। वो बोल रहे हैं हमको कि आप हमको ऐसा वेक्टर निकाल कर दो जो वेक्टर को अगर मैं इन दोनों के साथ ऐड कर दूं तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाए एक्स एक्सिस के क्रॉस। इसलिए मैंने कहा था कल सबको पढ़ के आने के लिए कि पढ़ के आओ। हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो अगर मैं इन दोनों के साथ ऐड कर दूं तो वो मुझे यूनिट वेक्टर दे देगा एक्स एक्सिस के अक्रॉस। और मुझे पता है कि वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अक्रॉस होता है उसको हम आई कैप बोलते हैं। मतलब मुझे ऐसा वेक्टर निकालना है जो मैं इन दोनों के साथ ऐड करूं तो मुझे आई कैप मिल जाए। मैंने कहा उस वेक्टर को मैं पी बार कंसिडर करती हूँ। सो पी बार प्लस ये दो जो ऊपर वेक्टर्स दिए हैं, अगर मैं पी बार को इन दोनों के साथ ऐड कर दूं तो ये मुझे आई कैप देगा। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया मुझे ये वैल्यू मिली, इसको मैंने ये साइड भेज दिया, सब्ट्रैक्शन हुआ तो मुझे पता चला कि अच्छा पी बार ये होगा। अगर आप इस पी बार को आप यहाँ डाल दोगे ना और आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आई कैप मिलेगा। कुछ समझे? यस मिस। यस मिस। सबको ये सम क्लियर हुआ? यस मिस। Yes, miss. सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट अ वेक्टर जो मुझे आई कैप निकाल कर दे, जो मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस निकाल कर देगा। सेम क्वेश्चन के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस निकाल कर दो जरा तो मुझे सेम वैल्यूज के। अच्छा पहले ये लिख लो, फर्स्ट राइट दिस, हो जाए तो बताओ।
Once you are done, let me know. डन मिस। हो गया। अभी इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग मांगा था ना यूनिट वेक्टर, सेम वैल्यूज लेकर वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस के अक्रॉस यूनिट वेक्टर चाहिए। पी बार निकालो क्या होगा, ऐसा पी बार कैलकुलेट करो कि आपको जेड एक्सिस के अक्रॉस यूनिट वेक्टर मिले। बताओ यहाँ पर बच्चों क्या डालोगे, व्हाट यू विल पुट हियर? ठीक है। ठीक है, इट्स ट्रू। चलो सब लोग अपना कैमरास ऑन करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो और मुझे बताओ पी बार क्या आ रहा है। मैम जितने वो लोग भी क्या अब लिखा एक बार दिखाओ ना। मैंने कहा कि जेड एक्सिस के क्रॉस यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट्स ऑल, यही लिखा था। कैलकुलेट जेड एक्सिस, कैलकुलेट पी बार so that you can get unit vector across z axis. Calculate p bar so that you can get unit vector across z axis. मैम सेम वे करना है ना? सेम वे करना है, सिर्फ आई कैप की जगह पे आपको कुछ और डालना पड़ेगा। अपना दिमाग लगाओ आप। अब जितने लोग भी लीव होंगे ना उनको एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। कैमरास ऑन करो, कोई भी कैमरा ऑफ। 5 बार क्यों बोलना पड़ता है एक ही बात सबको? एक बार में समझ में नहीं आती बातें। आर्यन, समर्थ, अबिन, देवेश, ओम, आयुष,